Very good afternoon, students. Now we comes on fourth lecture of partial differentiation. In previous lecture we have seen a chain rule and we will continue the problems of chain rule in this lecture also. So I have written here one problem. If z is a function of x and y and if x is equals to e raised to u plus e raised to minus v, y equals to e raised to minus u minus e raised to v, then we have to show that del z by del u minus del z by del v equals to x into del z by del x minus y into del z by del y. That we have to prove here. Okay, so that we have given here x and y in terms of u, v, and z we have given that z is a function of x and y, and we have to show that the derivative of that z with respect to u as well as with respect to v and their subtraction should be in this form. मतलब यहाँ पे अगर z के derivatives दिए हैं with respect to u और v, that means we have to find that derivatives of z with respect to u और v. and हमें दिया है कि z x y का फंक्शन है और x y u v के फंक्शंस है. So obviously we have to use here chain rule. What we have given, z is function of what? X, y, and x is equals to e raised to u plus e raised to minus v and y equals to e raised to minus u minus e raised to v. So what we say from that z is a function of x, y, and x, y are nothing but a functions of u and v. So obviously what we say that z is also the function of u and v. But डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं निकलेगा z का u के साथ और v के साथ. So obviously we have to use the chain rule as z is a function of x, y and x, y are the functions of u and v. So one by one we will see that. So as we have given here, what we have given? Here we have given the x and y both are in terms of u and v. So first we take the derivatives of that x, y in terms of u and v. So one by one we will see that step here. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u एंड विथ रिस्पेक्ट टू v also. So we write here del x by del u. What we get del x by del u, that is differentiation of x with respect to u. और जब u के साथ लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, so obviously the derivative of that term becomes 0. So e raised to u derivative is e raised to u. यहाँ पे similarly we take the derivatives of y with respect to u and v. So del y by del u क्या हो जाएगा? यहाँ पे u का डेरिवेटिव होगा e raised to minus u का. So e raised to minus u derivative is e raised to minus u and repeat derivative of that minus u. u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा but there is a minus sign, so minus 1. Similarly यहाँ पे del x by del v निकालेंगे हम. So del x by del v जब निकालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएंगी और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e raised to minus v into derivative of that minus v with respect to v, that is a 1. Then next is a del y by del u. Del y by del u is equals to, so derivative of y with respect to u, यहाँ पे अगेन ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी del y by del u ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम. वी फाइंड del y by del v. सो del y by del v का डेरिवेटिव ये टर्म 0 हो जाएंगी. यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा और e raised to v का डेरिवेटिव e raised to v. So in this way we get that partial derivatives of x and y with respect to u and v. अब आएंगे हम del z by del u की तरफ. So what you have to calculate now? We have to calculate del z by del u. अब डायरेक्ट निकलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है to take the derivatives of that del z by del u with respect to u. So we have to apply here chain rule as z is a function of x, y and x, y is a function of u, v. So how we apply the chain rule? सबसे पहले तो हमें z का x के साथ लेना पड़ेंगे डेरिवेटिव यहाँ पे, देन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u. सेकंड टाइम अगेन z का डेरिवेटिव x और y दोनों भी है तो यहाँ पे z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y and then y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u because z is a function of both x and y. So in this way we take del z by del u and now we put the values of that. Del z by del x तो हमारे पास as it is रहेगा, but already we have find that del x by del u. Del x by del u is nothing but e raised to u plus del z by del y and del y by del u is nothing but a minus. So we write here minus of e raised to minus. So in this way we get del z by del u. So we write
write that value here. We give it equation number 1 because it is useful. So we give it equation number 1. Then we find del z by del v. So del z by del v is equals to what we get, then del z by del v. So we write del z by del v, that is equals to del z by, again we have to take here partial derivatives first with respect to x, del z by del x by del v, then plus del z by del y and del y by del v. And now we put derivatives, del z by del v equals to del z by del x and del x by del v. What is del x by del v? So del x by del v is nothing but a minus of e raised to minus v, minus of e raised to minus v plus del z by del y by del v. So del y by del v is nothing but again here is a minus of e raised to v. So we have put all that values in that, and now we give it equation number 2. Now what we have to do, यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द एलएचएस, del z by del u minus del z by del v. So we have to consider that. What we do there, we say that equation 1 minus equation 2. हम क्या लेंगे, equation 1 minus equation 2, that is del z by del u minus del z by del v. So simplify करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, we get that RHS. So we write here, so del z by del u minus del z by del v, one by one we put the values of both that. यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे हम. So del z by del x e raised to u plus, यहाँ पे माइनस है तो we write that minus of e raised to minus u del z by del y, ये होगी इसकी वैल्यू. Then minus we write value of that term minus, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है दोनों की इसमें, सो वी टेक दैट. अगर माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकल जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ठीक है. बट वी राइट फर्स्ट ई रेस टू माइनस वी del z by del x, देन यहाँ पे होगा माइनस ऑफ ई रेस टू वी del z by del y. अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू. अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे del z by del x है, यहाँ पे भी del z by del x. तो हम क्या कर सकते हैं, वी टेक दैट common term of del z by del x. So we will write that result on that side. So what we write here, that del z by del u minus del z by del v, that is equals to, यहाँ से हम ये टर्म कॉमन लेंगे del z by del x की, so that gives del z by del x. So what is remaining here, e raised to u. अब यहाँ पे क्या होगा, जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस इट बिकम अ प्लस, सो वी राइट हियर प्लस e raised to minus v. Then second time there is, here is a del z by del y, here is also del z by del y, here is a minus, here is also minus, so we take that minus del z by del y. अब जब माइनस del z by del y हम कॉमन लेंगे, so what is remaining here, here is a e raised to minus u and here is a plus e raised to v. So in this way we write the both. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो व्हाट अबाउट दैट टर्म, यहाँ पे जो x की वैल्यू है तो ये है ये, और ये अगर देखेंगे तो ये क्या है आपकी. अब यहाँ से अगर आप माइनस साइन लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे तो ये प्लस होने वाला है. यस, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, और जब आप यहाँ से माइनस साइन लेंगे कॉमन तो ये फिर माइनस हो जाएगा. ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग दैट बिकम माइनस माइनस प्लस and that minus. So when you take a minus sign common, so here is a e raised to minus u and here is a minus minus plus, so minus it become a minus. Okay, और आप एक और स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको confusion रहा, so you can write del z by del x, here is a e raised to u minus e raised to minus u del z by del y minus minus plus e raised to minus v del z by del x, here is also minus minus plus e raised to v del z by del y. अब यहाँ से हमने इस टर्म से और इस टर्म से del z by del x लिया था, यहाँ प्लस था, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था.
अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस से हम कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस का माइनस हो जाएगा. सो दैट इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ y. ओके, सो एज x is equals to e raised to u plus e raised to minus v and y equals to e raised to minus u minus e raised to v, we give it equation number 3 using in equation 3. कहाँ पे यूज करना है हमें? इक्वेशन 3 में. सो व्हाट वी गेट देन, del z by del u minus del z by del v, that is equals to, we write here x into del z by del x minus, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको y, so y into del z by del y, and in this way we prove this result. Hence result क्या होगा यहाँ पे? Result is proved. So in this way we prove that result. So hope you understand that. Again it is by using the chain rule. So एक बार इसको अच्छे से देख लो. Now we comes with the second problem. If x is equals to under root of vw, y equals to under root of uw, and z is equals to under root of uv, and phi is a function of x, y, z, then what you have to show? We have to show x del phi by del x plus y del phi by del y plus z del phi by del z equals to u del phi by del u plus v del phi by del v plus w del phi by del w. अब पहले कुटली यहाँ पे कौन सी साइड हमें कंसीडर करनी है वो हम इस वैल्यू से चेक करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन कौन से फॉर्म में है. सो यहाँ पे we write that as it is function, but before that as if phi is a function of x, y, z, so we write here phi as a function of x, y, z हमें दिया हुआ है. बट अगर यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो x, y, z दिया है, बट दैट x, y, z आर इन टर्म्स ऑफ u, v और w के फॉर्म में है. और ऑब्वियस है अगर x, y, z phi x, y, z का फंक्शन है, सो ऑब्वियसली phi इज अ फंक्शन ऑफ u, v, w. अब अगर phi u, v, w का फंक्शन है, सो बाय यूजिंग द चेन रूल वी कैन फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दैट phi with respect to u, v, w. That means we can find that term. That means we can easily get the RHS, और RHS कंसीडर करके हम क्या प्रूव करेंगे? LHS इक्वल है ऐसा प्रूव करेंगे. सो वन बाय वन विल सी दैट. सो बिफोर दैट यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमें दी हैं वो हम लिख लेंगे. सो x इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ v w, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ uw and z is equals to under root of uv. अब इस सबको हम दे देंगे नंबर. गिव इट इक्वेशन नंबर 1, इट्स इक्वेशन नंबर 2 and that is इक्वेशन नंबर 3. वन बाय वन वी हैव गिवन ऑल दैट नंबर्स टू ईच. अब वन बाय वन हम निकालेंगे इसके डेरिवेटिव्स. अब एक्स वाई जेड फंक्शन है u v w के, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव्स ऑफ दैट एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू u v w. मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले x के with respect to u, with respect to v and with respect to w. तो सबसे पहले हम निकालेंगे del x by del u. अब अगर ध्यान से देखोगे इस टर्म में तो आपको u कहीं नजर नहीं आएगा, सिंपली v और w है. सो ऑब्वियसली u अगर इसमें नहीं है तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा? यस, जीरो हो जाएगा बिकॉज द u इज नॉट प्रेजेंट देयर. उसके बाद हम निकालेंगे del x by del v. अब जब del x by del v आप निकालेंगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ x. कौन से फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ x. अब जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं आप अंडर रूट ऑफ x का, दैट इज 1/2 रूट ऑफ x, ऐसे फॉर्म में रहता है. तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ v इंटू w. बट यहाँ पे सिंपली एक टर्म नहीं है, देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो इसका भी रिपीट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें v w का विथ रिस्पेक्ट टू v. अब जब आप रिपीट डेरिवेटिव लेंगे v w का विथ रिस्पेक्ट टू v, तो v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 इंटू w, तो यहाँ पे रहेगा आपका w. सो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 1/2. यहाँ पे w है, यहाँ पे रूट w है, तो एक रूट w इसके साथ कैंसिल होगा क्योंकि आपको पता है कि जो हम w लेते हैं दैट इज नथिंग बट रूट w स्क्वायर रहता है. सो यहाँ पे रूट w स्क्वायर है, एक रूट w इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा? रूट w अपॉन रूट v. तो ये हो गई आपके डेल x बाय डेल v की वैल्यू. ओके,
आगे तो हम ऐसा करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज del x by del v, that is nothing but 1 by 2 into root vw, here is a repeat derivative of vw, and that is equals to 1 by 2 under root of w upon under root of v. So in this way we simplify that. So ये तो हो गया आपका del x by del v. अब आते हैं del x by del w की तरफ. So what is our del x by del w? del x by del w क्या मिलेगा, अगेन इस फॉर्म में होगा 1 by 2 into root of v w. अब रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट v w विथ रिस्पेक्ट टू w, तो w का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, रहेगा यहाँ पे v. अब जब v रहेगा अगेन रूट v स्क्वायर, सो 1 रूट v गेट कैंसिल विद दैट, और यहाँ पे रहेगा 1 by 2 into root v अपॉन रूट w. सो रिमेम्बर दैट. सिमिलरली अब आएंगे हम y की तरफ. अब y के भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें निकालने हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू u, v एंड डेल w. अब सबसे पहले जब लेंगे आप डेल y बाय डेल u, तो यहाँ पे 1 by 2 रूट ऑफ uw, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट uw विथ रिस्पेक्ट टू u, सो दैट इज सिंपली u का डेरिवेटिव 1 w, सो दैट इज नथिंग बट 1 by 2, यहाँ पे होगा आपका रूट w अपॉन रूट u. उसके बाद डेल y बाय डेल v. सो डेल y बाय डेल v क्या रहेगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो v की टर्म ही नहीं है, ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा. उसके बाद डेल y बाय डेल w, दैट इज अगेन 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ u w, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ u w विथ रिस्पेक्ट टू w, दैट इज a u, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 by 2 अंडर रूट ऑफ, या आप सेपरेट भी लिख सकते हैं या कंबाइन, अंडर रूट ऑफ u और अंडर रूट ऑफ w, क्योंकि एक अंडर रूट w इसके साथ हो जाएंगे कैंसिल. सो इन दिस वे वी गेट दैट डेल y बाय डेल u. अब आते हैं हम इस साइड, अब निकालेंगे डेल x. x का डेरिवेटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू u v w, y का भी हो गया, अब निकालेंगे z का. सो यहाँ पे आ जाएंगे हम डेल z बाय डेल u लेंगे सबसे पहले. डेल z बाय डेल u, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u v, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ u v, और रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट u v विथ रिस्पेक्ट टू u, तो हो जाएगा सिंपली v, बिकॉज u का डेरिवेटिव 1 इंटू v v, और यहाँ पे 1 by 2, यहाँ पे होगा आपका अंडर रूट v अपॉन अंडर रूट u. इसके बाद डेल z बाय डेल v. अब डेल z बाय डेल v, डेल z बाय डेल v का डेरिवेटिव अगेन 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ u v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, दैट इज a u, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 by 2 रूट u बाय रूट v, बिकॉज एक रूट u इसके साथ कैंसिल होगा. और फाइनली जब आप डेल z बाय डेल w निकालेंगे तो यहाँ पे w की टर्म नहीं है, सो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. सो इन दिस वे यू गेट ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ दैट x y z विथ रिस्पेक्ट टू u v w. अब आ जाते हैं हम फाई की तरफ. अब सबसे पहले हम निकालेंगे डेल फाई बाय डेल u, देन डेल फाई बाय डेल v एंड देन डेल फाई बाय डेल w. ये सभी टर्म्स कैसे निकालेंगे, यस बाय यूजिंग द चेंज रूल, क्योंकि यहाँ पे फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया है, पर एक्स वाई जेड के फॉर्म में फाई की वैल्यू नहीं दी है, बट हमें फाई की एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, और फाई की वैल्यू यू वी के फॉर्म में नहीं है. सो ऑब्वियसली वी हैव टू अप्लाई हियर चेन रूल. चेन रूल से उसके डेरिवेटिव्स पॉसिबल रहते हैं. सो डेल फाई बाय डेल यू इज इक्वल्स टू डेल फाई बाय, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाई का एक्स वाई जेड के साथ एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू यू के साथ. तो सबसे पहले डेल फाई बाय डेल एक्स, देन डेल एक्स बाय डेल यू. उसके बाद डेल फाई बाय डेल वाई बाय डेल यू, देन डेल फाई बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल यू. सो ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे सभी टर्म्स. अब 1 by 1 हम सब वैल्यूज क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे. सो डेल फाई बाय डेल यू देखो अब क्या हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू एज इट इज रहेंगे डेल फाई बाय डेल एक्स की. बट व्हाट अबाउट डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड दैट इज नथिंग बट 0. तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 0. उसके बाद डेल फाई बाय
del y by del u. So we have find del y by del u, that is nothing but 1 by 2 अंडर रूट ऑफ w by अंडर रूट ऑफ u. उसके बाद del phi by del z एज इट इज, और del z by del u की वैल्यू हम निकालेंगे. तो del z by del u हमने सिंप्लीफाई की थी 1 by 2 इंटू अंडर रूट ऑफ v by अंडर रूट ऑफ u. सो इस तरह से हमें मिल गई ये सब वैल्यूज. अब आगे क्या करेंगे हम? अब सिमिलरली वी फाइंड दैट del phi by del u निकाल लिया हमने, del phi by, अब हमें क्या निकालना है? del phi by del v. तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम. del phi by del u ये 0 हो जाएगा. सिंपली यहाँ पे क्या रहेगा? 1 by रूट 2 सॉरी 1 by 2 रूट ऑफ w अपॉन रूट ऑफ u प्लस 1 by, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में del phi by del y, देन प्लस 1 by 2 यहाँ पे अंडर रूट ऑफ v अंडर रूट ऑफ u del phi by del z. देन अब आते हैं हम थर्ड टर्म की तरफ, del phi by del v. अब क्या होगा del phi by del v? अगेन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स, phi का विथ रिस्पेक्ट टू x, देन विथ रिस्पेक्ट टू x का विथ रिस्पेक्ट टू v, देन प्लस phi का विथ रिस्पेक्ट टू y और y का विथ रिस्पेक्ट टू v, देन प्लस phi का विथ रिस्पेक्ट टू z और z का विथ रिस्पेक्ट टू v. सो ये हो जाएंगी. अब उसके बाद del phi by del v दैट इज इक्वल्स टू del phi by del x एज इट इज, del x by del v. सो del x by del v क्या होगा आपके पास? del x by del v हमारे पास वैल्यू है उसकी 1 by 2 अंडर रूट ऑफ w अपॉन अंडर रूट ऑफ v प्लस del phi by del y, del y by del u. So what is del y by del u? Sorry, del y by del v. It is a 0. So यहाँ पे एक टर्म हर एक इसमें 0 आने वाली है. तो कौन सी रहती है ध्यान से देखना. del phi by del z by del v. So del z by del v is nothing but a 1 by 2 under root of u upon under root of v. Okay. So finally हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं. del phi by del v that is equals to, ये आएंगे और ये टर्म आएंगी, ये तो 0 हो जाएंगे. That is 1 by 2 under root of w by under root of v del phi by del x प्लस 1 by 2 अंडर रूट ऑफ u अंडर रूट ऑफ v del phi by del z. और फाइनली हम लिखेंगे del phi by del w. So how we write then? Again chain rule, del phi by del x by del w प्लस del phi by del y by del w प्लस del phi by del z by del w. So in this way we write that. One by one we put the values. So del phi by del w that is equals to del phi by del x as it is into del x by del w. So del x by del w की वैल्यू क्या है हमारे पास? That is 1 by 2 अंडर रूट ऑफ v अपॉन अंडर रूट ऑफ w प्लस del phi by del y into del y by del w. So del y by del w, what is del y by del w? That is nothing but a 1 by 2 अंडर रूट ऑफ u अपॉन अंडर रूट ऑफ w प्लस उसके बाद del phi by del z एंड del z by del w is nothing but a 0. एक तीनों टर्म में से एक टर्म 0 आती है, वो ध्यान में रखना. सो जब आप del phi by del w निकालेंगे तो del z by del w की वैल्यू 0. जब आपने del phi by del u निकाला तो वहाँ पे del x by del u की वैल्यू 0. जब आपने del phi by del v निकाला तो वहाँ पे del y by del v की वैल्यू 0. सो ऐसे एक टर्म उसमें 0 आती है. सो del phi by del w इज इक्वल्स टू
यहाँ पे ये लास्ट टर्म 0 है, सिंपली यहाँ पे ये दोनों टर्म्स रहेंगी, बाकी 0। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, ये मैं अब यहाँ पे रब कर दूंगी। वी हैव फाइंड ऑल दिस वैल्यूज, इसकी वैल्यू निकाली डेल फाइव बाय डेल डब्ल्यू की, उसके बाद हमने डेल फाइव बाय डेल यू की निकाली, और उसके बाद डेल फाइव बाय डेल वी की भी निकाली। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें यू के साथ डेल फाइव बाय डेल यू है, वी के साथ डेल फाइव बाय डेल वी है, डब्ल्यू के साथ डेल फाइव बाय डेल डब्ल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर दे देंगे, वी गिव इट, या फिर we can put directly the values. Suppose give it equation number 1 2 3 हमने ऑलरेडी दिए थे, इसको 4 दे देंगे, इसको 5 कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। So we consider now RHS and therefore U del phi by del U plus V del phi by del V plus W del phi by del W, and now we put values one by one. So I will rub that part now. Now we put one by one values here. सबसे पहले तो हम u के साथ डेल फाइव बाय डेल यू की वैल्यू ले लेते हैं। अब जब u से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इस साइड क्या मिलेगा, वी राइट दैट डायरेक्टली 1/2 यहाँ पे u इंटू रूट डब्ल्यू बाय रूट यू डेल फाइव बाय डेल वाई। सेकेंड टर्म में भी u से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 u अंडर रूट ऑफ v अपॉन अंडर रूट u इंटू डेल फाइव बाय डेल z। ओके, ये हो गई इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म की। अब प्लस v इंटू डेल फाइव बाय डेल v। अब v जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 v अंडर रूट w बाय अंडर रूट v डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे भी v से मल्टीप्लाई हो जाएगा v अंडर रूट यू अंडर रूट v डेल फाइव बाय डेल z। उसके बाद प्लस अब थर्ड w के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो प्लस 1/2 यहाँ पे w से w रूट v बाय रूट डब्ल्यू डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस यहाँ पे 1/2 यहाँ से भी w से w अंडर रूट यू अपॉन अंडर रूट डब्ल्यू डेल फाइव बाय डेल z। सो इन दिस वी राइट दैट। अब अगर थोड़ा सा ध्यान में देखोगे तो यहाँ पे u है, यहाँ पे रूट u है, यहाँ पे u, यहाँ पे रूट u, यहाँ पे v, यहाँ पे रूट v, यहाँ पे v, यहाँ पे भी रूट v, यहाँ पे w, यहाँ पे रूट w, यहाँ पे w अगेन, यहाँ पे रूट w। अब ये क्या चेंजेस करना पड़ेगा हमें, हमें पता है कि u बाय रूट u अगर रहा सो दैट इज नथिंग बट सिंपली रूट u, क्योंकि इसमें क्या आते हैं, इसमें दो रूट्स आते हैं। अब यू कैन राइट दैट कैन बी रिटन एज रूट u होल स्क्वायर बाय रूट u। तो ये हो गया आपका रूट ऑफ u, ऐसे फॉर्म। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे लोगे क्या v अपॉन रूट v, सो दैट इज इक्वल्स टू रूट v स्क्वायर अपॉन रूट v, सो इट इज इक्वल्स टू रूट v ओनली। जब आप लेंगे w अपॉन रूट w, सो दैट इज इक्वल्स टू रूट w स्क्वायर बाय रूट w, सो दैट इज इक्वल्स टू रूट w। सो जहाँ जहाँ भी ये टर्म्स है यहाँ पे w बाय रूट w इज रिप्लेस बाय ओनली रूट w, यहाँ पे भी रूट w होगा, यहाँ पे रूट v होगा सिंपली, यहाँ पे रूट v, यहाँ पे रूट u और यहाँ पे भी रूट u। सो वन बाय वन वी राइट ऑल दैट वैल्यूज हियर। सो वी सिंप्लीफाई दैट u डेल फाइव बाय डेल u प्लस v डेल फाइव बाय डेल v प्लस w डेल फाइव बाय डेल w, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2, इसकी वैल्यू u बाय रूट u दैट इज नथिंग बट रूट u एंड रूट w, सो वी डायरेक्टली राइट रूट ऑफ uw इंटू डेल फाइव बाय डेल y। उसके बाद प्लस 1/2 यहाँ पे भी रूट u रूट v, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ uv डेल फाइव बाय डेल z। इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म
इस तरफ आते हैं हम, सो प्लस 1/2, यहाँ पे भी रूट वी रहेगा, सो रूट वी रूट डब्ल्यू, दैट इज रूट ऑफ वी डब्ल्यू डेल फाइव बाय डेल एक्स। उसके बाद प्लस 1/2, यहाँ पे रूट वी रूट यू, सो रूट ऑफ वी डब्ल्यू डेल फाइव बाय डेल जेड, देन प्लस यहाँ पे 1/2 रूट w by root w root v, so root of w into v del phi by del x plus 1/2 w by root w, that is root w and root v u, that is root of w u into del phi by del z। सो इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे। अब टोटल टर्म्स अगर देंगे 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 टर्म्स और हर एक टर्म रिपीट है, 2 टाइम्स एक टर्म आ रही है वहां पे। सो एक बार इसको ध्यान से देख लो कि कौन सी टर्म्स यहाँ पे रिपीट हो रही है। सो यहाँ पे डेल फाइव बाय डेल एक्स, डेल फाइव बाय डेल वाई, डेल फाइव बाय डेल जेड। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है वी डब्ल्यू, यहाँ पे यू वी वी डब्ल्यू, दैट इज वन एंड दी सेम। और इसकी वैल्यू क्या है, वी डब्ल्यू की वैल्यू है एक्स। सो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ये दोनों टर्म्स, ये टर्म ऐड हो जाएंगी और ये टर्म ऐड हो जाएंगी। उसके बाद ये टर्म ऐड हो जाएंगी और उसके साथ वाई की टर्म यहाँ पे नहीं है, क्या है, शायद हमने 2 बार डब्ल्यू जेड की टर्म्स लिख दी। यहाँ पे डेल फाइव बाय डेल एक्स डेल वाई डेल फाइव बाय डेल वी डेल डब्ल्यू, डेल फाइव बाय डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल फाइव बाय डेल डब्ल्यू, ये 0 होगी, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू y है। ये डेल फाइव बाय डेल डब्ल्यू की टर्म्स है और यहाँ पे w को डेल फाइव बाय डेल डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे w आ जाएगा, डेल फाइव बाय डेल एक्स है, प्लस यहाँ पे 1/2 w आ जाएगा, डेल फाइव बाय डेल वाई है। तो यहाँ पे अगर डेल फाइव बाय डेल वाई है तो फाइनली यहाँ पे भी क्या आने वाला है, डेल फाइव बाय डेल वाई आने वाला है। सो यहाँ पे भी यू डब्ल्यू है और यहाँ पे भी क्या है, यू डब्ल्यू है। यहाँ पे स्टार स्टार, यहाँ पे डॉट डॉट। अब ये वी डब्ल्यू की वैल्यू है जेड की और यहाँ पे और एक वी डब्ल्यू है, यहाँ पे यू वी है, तो आएंगी तो वैल्यू वन एंड दी सेम। यहाँ पे यहाँ पे क्या आने वाला है, वी डब्ल्यू डेल फाइव बाय डेल जेड। सो फाइनली लास्ट टर्म में शायद थोड़ी गड़बड़ हुई, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे v और u होंगे, मतलब वी डब्ल्यू वी और u। अब देखेंगे यस वन एंड दी सेम है ये। सो ध्यान से थोड़ा सा टर्म्स यहाँ पे आप लिखना, दैट 1/2 एक बार लगे तो हम चेक कर लेते हैं। यानी से 1/2 रूट ऑफ यू डब्ल्यू डेल फाइव बाय डेल वाई प्लस 1/2 यहाँ पे रूट वी यू वी डेल फाइव बाय डेल जेड प्लस 1/2 यहाँ पे रूट वी डब्ल्यू डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस 1/2 यहाँ पे रूट यू वी होगा, रूट यू वी डेल फाइव बाय डेल जेड प्लस 1/2 यहाँ पे रूट डब्ल्यू रूट वी डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस 1/2 यहाँ पे रूट डब्ल्यू रूट यू, सो रूट ऑफ डब्ल्यू यू डेल फाइव बाय डेल वाई। सो इन दिस वे वी राइट दैट ऑल। अब आ जाएंगे इस साइड। सो फाइनली व्हाट वी राइट, दैट इज यू डेल फाइव बाय डेल यू प्लस वी डेल फाइव बाय डेल वी प्लस डब्ल्यू डेल फाइव बाय डेल डब्ल्यू
दैट इज इक्वल्स टू, अब हर एक टर्म 2 टाइम्स है तो सबसे पहले हम डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू ले लेते हैं. सो डेल फाई बाय डेल एक्स क्या है वहाँ पे 1/2 रूट वी डब्ल्यू 1/2 रूट वी डब्ल्यू. सो 1/2 इट बिकम अ 1 and root VW that is simply root VW. तो इसकी वैल्यू क्या होंगी 1/2. we can write that 1/2 root VW plus 1/2 root WV that is nothing but a 1/2 1 into दोनों टर्म सेम है so that is a VW. so simply we write here V under root of VW. सिमिलर हर एक टर्म के लिए ऐसा ही होगा. प्लस आप जब डेल फाई बाय डेल वाई के टर्म कलेक्ट करेंगे तो डेल फाई बाय डेल वाई इसके साथ क्या है 1/2 रूट ऑफ यू डब्ल्यू और यहाँ पे भी 1/2 रूट ऑफ डब्ल्यू यू दैट इज 1/2 1 हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे रूट ऑफ यू डब्ल्यू. उसके साथ थर्ड डेल फाई बाय डेल वाई. यहाँ पे थर्ड टर्म डेल फाई बाय डेल जेड की होंगी. अब डेल फाई बाय डेल जेड यहाँ पे डेल फाई बाय डेल जेड है और यहाँ पे डेल फाई बाय डेल जेड है. उसके साथ अंडर रूट ऑफ यू वी यहाँ पे वी यू दैट इज वन एंड द सेम 1/2. सो फाइनली वी राइट हियर रूट ऑफ यू एंड वी. सो इन दिस वे वी गेट दैट. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दैट तो इनिशियली यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखी थी एक्स वाई और जेड की, उसको हमने नंबर भी दिए थे. वी हैव गिवन अ पर्टिकुलर नंबर टू दैट एक्स वाई एंड जेड. एक्स इस इक्वेशन को 1 दिया था, इस इक्वेशन को 2 एंड दैट 3. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दैट वी डब्ल्यू इज नथिंग बट एक्स इंटू डेल फाई बाय डेल एक्स. यू डब्ल्यू इज नथिंग बट वाई इंटू डेल फाई बाय डेल वाई एंड रूट ऑफ यू वी इज नथिंग बट जेड इंटू डेल फाई बाय डेल जेड. सो व्हाट वी राइट हियर वी कैन राइट हियर यूजिंग व्हाट वी यूज using equation 1, 2 and 3. So in this way we get that is phi of u. यहाँ पे क्या है u del phi by del u plus v del phi by del v plus w del phi by del w that is equals to that final result. And in this way we prove that result. We have proved that result. जो result हमें वहाँ पे निकालने के लिए दिया था वी हैव प्रूव दैट रिजल्ट. एंड यहाँ पे फाइनली हम लिखते हैं LHS इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमको RHS मिल रहा है एंड हेंस रिजल्ट इज प्रूव्ड. इन दिस वे वी प्रूव द सेकंड रिजल्ट फॉर द चेन रूल प्रॉब्लम्स ऑफ द चेन रूल. और एक प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दूंगी.